Good morning all of you. From Monday we are continuously studying about the 4.2 exercise of 10th class, in which we have to solve the quadratic equation. So we have already solved some questions, or you can say some equations, and we have find out the solution for these all, you can say 1, 2, 3 questions. Now today I am going to tell you some word problems which are based on the quadratic equations, and you can say that from 4.2 exercise. So let's start about the exercise 4.2 once again. Yesterday we have solved 3 questions of this exercise. Now today we are going to start the question number 4. What you have given in this question: find 2 consecutive positive integer whose sum is sum of the whose square is 365. You have given that consecutive integer. Okay, so x and x plus 1. These are the 2 consecutive integer. Why these are the 2 consecutive integer? Because all of you know that 1 and after 1 2. तो अगर आपके पास में 2 consecutive integer की बात आती है, what you will suppose, this will be the first integer and this will be second. तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसको आपने x सपोज किया, तो ये क्या है? x में कितना ऐड किया? 1. ओके, तो इसलिए हमारे पास में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, दिस विल बी x एंड x प्लस 1. ओके, अब ये क्लियर है कि x और x प्लस 1 ही क्यों माना, ठीक है ना? तो वो इसलिए बिकॉज आपके पास में एक इंटीजर है, वो है 1 और दूसरा है 2. ओके, तो पहला सपोज करो x और दूसरा x प्लस 1. ओके, now according to question or whatever given to you in question, that you have 2 consecutive integer whose square sum, यानी कि इनका स्क्वायर अगर हम बात करें according to question x square plus x plus 1 square. ओके, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम जो है वो इक्वल है 365 इसके. ओके, so all of you know that we must be create or we must be convert the word problem into the quadratic equation. यानी कि पहले हमें क्या करना होता है कि whatever word problems given to you, you need to change it into the quadratic equation, and once you will change it into the quadratic equation, then after that you will be able to solve it by factorization. Okay, so in last exercise like 4.2 we have solved so many equations by the help of the factorization, and in this you need to again solve this. Like this is x square only, and this will become x square plus 2x plus 1 equals to 365. ये कहां से आता है? तो all of you know that a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. ओके, सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसको हमने कन्वर्ट किया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा. ओके, नाउ x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365. ओके, this 365 will become here, then it will be negative. So 2x square plus 2x minus 364 equals to 0. ओके, अब आपके पास में ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में आपके पास में ये इक्वेशन आ गई. अब आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन करना है तो उससे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगी?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब आपके पास में जो इक्वेशन बन गई वो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, और इसको करना आपको फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 182 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज a इक्वल्स टू कितना है 1, c इक्वल्स टू कितना है 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन a इंटू सी, तो ये कितना आएगा 182। अब 182 का आप क्या करो, ऐसे फैक्टर करो कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 182 को ऐसे फैक्टराइज यानी ऐसे पार्ट करने आपको कि 1 आ जाए। समझ गए? तो हमने कल एक एग्जांपल या क्वेश्चन किया था जिसमें आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14x माइनस 13x माइनस 182, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 14x माइनस 13x मीन्स ओनली x बचता है, और 14x इंटू 13x करते हो तो कितना आता है 182। Now again x will be common here, so you will see that x plus 14 will be remaining, minus 13 will be common, then x plus 14 will be remain. Okay, and these two brackets are same to each other, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, सही है। अब ये दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन ले लो आप, 1x plus 14 will be common, then x minus 13 will be remains. Okay, now you have x plus 14 and x minus 14. If you will put x plus 14 equals to 0, then it will be x equals to minus 14. Okay, and another one be x minus 13 equals to 0, that means x equals to 13. Okay, so you will able to see that whatever you can say, आपने जो भी सपोज किया था उसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 13 एंड 14. ओके, हमने इसमें क्या किया है, वन मोर टाइम आई एम रिवाइजिंग ओवर हियर, लाइक यू हैव गिवन द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1. ठीक है, x और x प्लस 1 ही क्यों सपोज किया आपने, तो इसको मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटीजर आप लेते हो तो फर्स्ट इंटीजर जो है उससे जस्ट आगे वाला इंटीजर है वो कब आता है, जब आप उसमें 1 ऐड करते हो। ठीक है ना, यानी यहाँ पे अपने पास में x एक इंटीजर है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1. ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट जो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर आपके पास में है उनके स्क्वायर का सम, अपने पास में कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, x और x प्लस 1, इनका स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, इक्वल्स टू 365. सो इट विल बी द इक्वेशन. अब यहाँ पे आपको ये पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने यहाँ पे इसमें अप्लाई किया. देन दिस विल बी x स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, एंड दिस 2x विल बी एज इट इज plus 1 equal to 365. This 365 will come from you can say right to left. ये यहाँ से इधर लाते हैं तो ये माइनस, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा. देन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 प्लस 1 करेंगे तो ये माइनस का ज्यादा है तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 364 इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म. ओके, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बन जाएगा. अब आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 है, इसको आप बाय फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हो, सोल्व. तो इसको अगर आप बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं तो वी मस्ट नो दैट इफ यू मल्टीप्लाई 14 इंटू 13 देन यू विल गेट व्हाट, 182, एंड इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 14 देन यू विल गेट 1. So you need to factorize this 182 in the form of you can say 1. इसके ऐसे फैक्टर करो कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 1. तो इसके ऐसे फैक्टर अपन ने करे 14 इंटू 13,
14 में से अगर 13 माइनस किया तो कितना आता है 1. सो वी हैव रिटन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. After that x will be common from these both x square and 14x. So you will see that x will be common, then x plus 14 will be remain here. Minus 13 will be common from these both, then you will see that x plus 14 will remain here. Okay, and then x plus 14 and x plus 14 will be common, then you will see that x minus 13 will be remain. तो यहाँ पे x plus 14 और x minus 13 जो है वो दो आपके पास में वेरिएबल बच गए. ओके, तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो आप रिमेनिंग जो भी है वो फाइंड कर सकते हो. अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है फिफ्थ क्वेश्चन. 4.2 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. यू हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल and in that right angle triangle you have given the base which is not you can say fix. यानी कि आपके पास में जो ट्राइंगल का बेस है वो फिक्स नहीं है, उसको आपको सपोज करना है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो उस बेस से कुछ कम या कुछ ज्यादा गिवन है. लाइक इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द बेस इज लेस, यानी कि आपने जो भी बेस सपोज किया है उससे 7 लेस है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ पे सपोज करो आप फिफ्थ क्वेश्चन जो है 4.2 का, उसमें आपको ट्राइंगल बनाना है. सबसे पहले दिस इज योर ट्राइंगल. ओके, एंड यू कैन से दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. आपको ट्राइंगल का बेस जो है वो सपोज कर लिया आपने. And this is x minus 7. Why? Because it is given in the question. And this will be the hypotenuse. Okay. So all of you know the Pythagoras theorem, which you have studied into 9th, and in this chapter, sorry, in this you can say exercise in 6th chapter, you will also study about the Pythagoras theorem and also the proof of Pythagoras theorem you will study. But now we are going to apply this Pythagoras theorem in this triangle which is given to you. आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल का बेस आपको गिवन नहीं है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 कम है. ओके, तो आपके पास में जो ट्राइंगल का बेस है वो आपने सपोज किया x, ठीक है ना, एंड इसका ये जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 7 कम उससे, एंड देन ये हाइपोटेनियस. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम all of you know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ये होता है. hypotenuse square is 13 square given to you. Base is what? Perpendicular x minus 7 and base is x square. First of all you need to know the identity of a minus b square equals to a square minus b square, a square plus b square minus 2ab. According to this identity, if you will say, then it will be x square plus 49 minus 14x plus x square. Is it clear to all of you? What we have done here, simply we have applied the Pythagoras theorem because this triangle is right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसी में ही पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो. तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यू हैव गिवन द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. आपने इस बेस को सपोज किया x और उसका परपेंडिकुलर जो है वो बेस से 7 कम है, इसमें आपने 7 माइनस कर दिया. Hypotenuse you have given is 13. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Then 13 square is hypotenuse equals to perpendicular square will be x minus 7 square. Then base is x square. Okay. अब इसमें से अगर आप इसको स्क्वायर को क्या करोगे, खोलोगे according to identity, then a square plus b square minus 2ab plus x square will be how much? 2x square. This will be 149.
169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ओके, अब इसको अगर सोल्व करते हो तो 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 120 इक्वल्स टू 0। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू, ओके। अब आपके पास में ये है 7x और ये है 60, ठीक है। तो इसमें अगर अपन इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे करेंगे? आपके पास में जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको 60 के ऐसे टुकड़े करो, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए? 7। तो ये कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x minus 60 equals to 0. This will be how much? X will be common, then x minus 12 plus 5 will be common, then x minus 12. Okay, it will be x minus 12 common here, then x plus 5 will be x minus 12 equals to 0, then x equals to 12. And x plus 5 equals to 0, then x equals to minus 5. एक्चुअल में डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पे ये x equals to 12 जो है वो क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा बेस। ओके, समझ में आ गया? हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? whatever given to you, simply you can say that in the right angle triangle you can apply the Pythagoras theorem. बट पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड बेस क्या है, ठीक है। तो हमें ये गिवन था कि इसका बेस जो है वो x सपोज करो और उसमें से 7 माइनस कर दो तो वो उसका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और आपको ये गिवन था इसका हाइपोटेनियस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव सोल्व्ड हियर एंड वी गेट द इक्वेशन simply hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, which is the Pythagoras theorem. Now hypotenuse 13 square equals to x minus 7 square plus x square. This will be 13 square equal to x square plus 49 minus 14x. And you will solve this complete equation. You will get x square minus 7x minus 60 equals to 0. So this is the equation in the form of, you can say that ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं, उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। ऑल ऑफ यू नो द फैक्टराइजेशन, हाउ वी कैन डू दिस। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ऑल ऑफ यू नो दैट 12 5 जो 60 होता है, 12 में से 5 जाता है तो ओनली 4 7 बचता है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कैन बी रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। Simply you will take x common from these both, then x will be common and you will see that x minus 12 and here plus 5 will be common, then x minus 12. Okay, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में x minus 12 आ रहा है, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन क्या है? सही है। Simply you will take x minus 12 common, then x plus 5 will be remain here and you will see that distance can't be into negative, so x equals to 5 will can't be supposed, x equals to 12 will be the base and after that you can verify this Pythagoras theorem. तो आप इस Pythagoras theorem को verify भी कर सकते हो by putting the value x equals to 12, यानी कि जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको आप इस इक्वेशन में या फिर जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसमें पुट करके और सपोज भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी नीड टू मूव फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज 6th क्वेश्चन एंड 4.2
today we will complete, so all of you must be do in fair notebook also. So let's see question number 6. In question number 6, a cottage industry produces certain number of pottery articles in the day. So you can say that production in the day x. ये आपने सपोज कर लिया कि एक दिन में कितना बनाते हैं x. ओके, अब इट वॉज ऑब्जर्व पर्टिकुलर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. कॉस्ट जो है वो कितनी है? इसकी जस्ट डबल और उसमें 3 और ऐड कर दो. ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन है उसका जस्ट डबल और उसमें 3 और ऐड कर दो, तब वो कॉस्ट आती है एक दिन की. इफ द टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है एक दिन की, देन ऑल ऑफ यू नो दैट टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स x हैं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 2x प्लस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई. क्लियर है आपको? हमने क्या किया, सबसे पहले सपोज किया कि वहां पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है x का. ओके, फिर क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डबल और उसमें 3 और ज्यादा कर दो. ठीक है, तो प्रोडक्शन हो रहा है कितना x, उसका डबल कितना हो गया और उसमें 3 और ऐड कर दिया, तो ये कॉस्ट आ गई किसकी? एक दिन के प्रोडक्शन की, एक प्रोडक्ट की. ओके, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? सपोज करो एक दिन में 10 प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो. अपन कितने बना रहे हैं x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो किसको? कॉस्ट को. x इंटू 2x प्लस 3 और वो कितनी है 90. समझ गए? तो जो भी अपने को गिवन था अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. नाउ यू नीड टू गो फॉर फर्दर टू फाइंड आउट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी कि आपके पास में जो इक्वेशन होती है उसको अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में ये बन गई. अब इसको अपने को क्या करना है? फैक्टराइजेशन. सो ऑल ऑफ यू नो दैट फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे कितना हो गया, a को c से करेंगे तो 180. 180 का बाय फैक्टर करो कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, तो कितना होगा 15 इंटू 12. सिंपली अगर आप 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? बिकॉज 15x इंटू 12x करते हो तो कितना आएगा 180, और 15 में से 12x सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा. ओके, so what is the rule of factorization? All of you know that if you will multiply a into c then you will get what? a into c का जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको फैक्टराइज करके और एड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये आना चाहिए b या b ऑफ x. समझ गए? तो यहाँ पे अगर अपन ने इसको फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया आपका 3x. इट विल बी 2x स्क्वायर में से इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? ओनली x. इट विल बी 2x प्लस 15. यहां पे कितना आएगा कॉमन? -6 देन 2x एंड इट विल बी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो यहां पे 2x प्लस 15 कॉमन आ जाता है. then you will get x minus 6. okay, if you will put these equals to 0 like x minus 6 equals to 0, then x equals to 6. okay, तो 6 प्रोडक्ट जो है वो एक दिन में वहां प्रोड्यूस होते हैं. ये 2x इक्वल टू -15
कोमा -15/2। ये प्रोडक्ट्स जो है वो माइनस में है, ये हो नहीं सकते हैं, तो ये x = 6 प्रोडक्ट्स वहां पे क्या होते हैं, एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए? तो इसको एक बार और देख लो आप। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था कि एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की जस्ट डबल और उसमें 3 ऐड कर दो। तो हमने सपोज किया प्रोडक्ट x होता है, देन उसके अंदर कॉस्ट जो है वो 2x + 3 हो गई। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है एक की, और टोटल कॉस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, जितने प्रोडक्ट अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, x प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो x इंटू ये हो गया = 90। ओके, आफ्टर दैट दिस विल बी योर complete equation. You need to factorize it, then simply you can say that a into c which is 180, 180 को फैक्टराइज करें तो कितना आएगा, 15 into 12, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। इसको कॉमन लिया आपने तो 2x + 15 कॉमन आ जाएगा, देन आपके पास में x - 6 x = 6 वैल्यू बचेगी। ओके, तो all of you must be do these all questions in your fair notebook, and if you will get any doubt then you can ask me. Okay, so till 4.2 all of you must be do in your fair notebook, and next method is complete square method, which is very important. So in next week we will do the complete square method and 4.3 exercise. Okay.